प्राउडली ये कहते हैं वी बिलोंग फ्रॉम इंडिया। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड फील दैट आवर क्लासिकल म्यूजिक, आवर क्लासिकल डांस, इट्स कूल। जाकिर हुसैन जी का जाना बहुत बड़ा लॉस है। मेरे गुरु थे, मेरे गाइडिंग लाइट थे। मेरे लाइफ में इससे बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता। तबला, अभी आप एक फुल स्टॉप डाल सकते हैं। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ का एक फेमस कोट है, टैलेंट यू हैव नेचुरली, स्किल इज डेवलप्ड बाय आवर्स एंड आवर्स ऑन बीटिंग योर क्राफ्ट। MESC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हजारों लोगों के स्किल और टैलेंट को रिफाइन करती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं MESC के पिलर्स, लेजेंडरी सिंगर एंड कंपोजर शंकर महादेवन, Academy Award winner Rasool Pukuti, and renowned actor Amit Bail, and also we have the CEO of MESC, Mohit Soni. Welcome to TV9. Thank you. Thank you. My first question will be, PM Modi हर बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो एक स्किलफुल भारत बनाना चाहते हैं, तो MESC इस विजन में कितना अलाइन करता है? देखिए, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है जी वो बहुत इंपॉर्टेंट विजन है। बिकॉज आप कोई भी क्राफ्ट लीजिए, जी कोई भी काम लीजिए, अभी कारपेंटरी आप लेंगे तो कारपेंटर जब तक वो स्किल्ड कारपेंटर नहीं है उसके काम में मजा नहीं आएगा। जी भले वो सिंगर हैं सब। अब बैट्समैन लीजिए, बहुत सारे बैट्समैन हैं लेकिन बहुत कम सचिन तेंदुलकर है, क्योंकि उनकी स्किल, इट इज द स्किल दैट मैटर्स। तो वो स्किल पे फोकस करके स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, उसका ही जो एक काउंसिल है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के 37 स्किल्स है, उसमें से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर टुडे एंड फॉर टुमारो। तो इसके लिए ये काउंसिल लॉन्च किया गया और मेरे ख्याल से इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ना केवल प्रेजेंट के लिए बट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत ब्राइट है। जी रसूल जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपको सब जानते हैं, आपने इंडिया का एक बड़े मुकाम पर नाम रोशन किया है, लेकिन आज भी ऐसा क्या है कि इंडिया में बहुत कम हमारे पास ऑस्कर अवार्ड्स आते हैं? What is the thing which is lacking? मैं ये इस पे ऑनेस्ट आंसर जानना चाहूंगी because you all are working towards it. So before I get into that question, जी. let me just correct what Shankar has said. We actually started in 2012. So MESC actually formed in 2012. Huh. So it is actually came from the legacy of Manmohan Singh ji, and it was his vision. And our current Prime Minister Narendra Modi has taken it forward and given the shape that it is today. Sorry, so I was not aware. Sure. looking back at it, I can in the last two ministerial positions we have come long ahead. Coming back to your question, why are we lacking? I can talk about technical front. The technical community in Hollywood is so evolved. I'm sure. So evolved. To be able to break into that community, it is so damn difficult. But today we have proved that Indian technical talent is no less than anybody. Today, by me getting nominated for MPSC award this year for Goat Life, we get the 7th nomination in India. Very few people know about it. And we have 3 technical Oscars in India. The numbers are going to be increasing because we started showing. I mean, India's representation in the Oscars is every year it is going up and up. What we are probably lacking is the Indian films, the way Indian films are marketed, because we've always been looking at the mainstream markets, the Hindi cinema as we understand today, how it has been marketed abroad, and it's very off late is what we found. Our businesses abroad can bring in money. So our entire outlook of furthering our business abroad has changed. But we need a vision how to put it across to the especially to the American community, because you have to understand Oscar is for American cinema. You know what is put in American cinemas. So there's also a bias side towards it? No, it's not that.
it is specifically designed for American community, American cinemas. You know, Correct. what is seen in American cinemas. How far Indian cinema is being showcased in the American cinemas is what we are lacking to understand, Correct. and that's where we need to work as a business community. We don't understand the business of cinema as the way the Americans have understood the business of cinema. For us, it's still a passion project. For us, it's still, you know, something that we've been dreaming of, our dream coming true. But also, there's a business side to it. I mean, I think to understand the business of cinema in that perspective of academic and otherwise, need a lot of trust. Yes. And that's probably where, you know, an institution like MESC and FICCI would come in and change the whole paradigm of it. विसु जी, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है और जब मैं आपका इंटरव्यू करने आ रही थी तो हर दूसरे जो यंगस्टर हैं 25 से नीचे, उन्होंने कहा कि वो ऐसा कौन सा टैलेंट है कि स्लम डॉग मिलियनेयर हो या पुष्पा 2 हो, द मास इज ड्रूलिंग ओवर द साउंड. तो अगर आप यूथ को कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से. I would say when you look up, when you want to be successful, it doesn't come in one day. You all came to know my profession on 22nd of February in 2009, but over a night. But you need to understand, you know, that one night of me was 14 years long. So there is no short way to success. Perseverance, stability, and conviction is what will take you there, and that conviction comes from what you academically learn over the years. Coming to you, Amit Bain ji, you are a renowned actor और आपको कई generations ने देखा है, लेकिन वो कौन सा पल होता है जब ये समझ में आता है कि एक्टिंग इज जस्ट नॉट यू गो, और आप जैसे कमर्शियल एक्टिंग की हम बात करते हैं कि एक्टिंग भी एक पढ़ाई है, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस. ये तो सबसे पहली बात मैं रसूल और शंकर सर के ऊपर ऐड करना चाहूँगा कि अमेरिका ने हॉलीवुड और आर्मामेंट्स, वेपन्स को अच्छी तरह मार्केट किया है, तो इसलिए हमें ये लगता है ये बेंचमार्क की जो अमेरिकन सिनेमा है वो वर्ल्ड सिनेमा है, वेरएज इंडियन कल्चर इज thousands and thousands of years older than that. नाट्य शास्त्र is older than the dictionary of American cinema. बट उन्होंने अच्छी तरह मार्केट किया और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जब RRR या स्लमडॉग मिलियनेयर या जब शंकर को भी जब ग्रैमी मिलती है, यू नो, आई मीन वी फील वेरी प्राउड. एंड बट द फैक्ट इज दैट जिस दिन ग्लोबल वर्ल्ड सिनेमा अवार्ड्स होगा और जिस दिन व्हेन वी कम्पीट एंड व्हेन इंडियन सिनेमा विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, एक ही प्लेटफॉर्म जब वर्ल्ड सिनेमा का फेस्टिवल होगा तब देखते हैं, देन लेट द बेस्ट मैन विन. आई एम श्योर वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर बिकॉज दैट्स द विजन दैट वी आर कैरिंग, दैट्स द रीजन वाई वी आर ऑल टुगेदर. और जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि इट इज ए तपस्या है. वी यू नीड टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ एक्टिंग, द फिलोसफी ऑफ नाट्यशास्त्र, द फिलोसफी ऑफ ग्रीक थिएटर. तो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, हमारे जितने भी वर्ल्ड ग्रेट्स हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा सा अध्ययन किया है, उसके बाद में मकाम पर पहुँचे हैं. चाहे वो रॉबर्ट डे नीरो हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे मरहूम इरफान खान हो, चाहे सर लॉरेंस ओलिविये हो. जैसे संगीत में या साउंड में, तो ट्रेनिंग फॉर एन एक्टर इज ग्लैमर इज जस्ट ए 0.5% बिकॉज यू आर सीन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, पीपल आइडलाइज यू नाउ मोर सो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. लेकिन जब आप कह रही हैं कि जनरेशन एंड जनरेशंस, मिस्टर बच्चन एक उदाहरण है कि ब्लैक एंड वाइट सिनेमा के टाइम से आके आज भी ही इज़ मोर रेलिवेंट देन मेनी ऑफ द पीपल इन द न्यू जनरेशन. और वो हमारे लिए एक यू नो एक स्रोत हैं, एक मतलब वी लुक अप टू हिम, वी लुक एट, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट कीप्स अस गोइंग. न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडियाज़, न्यू फॉर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस टू कीप अवरसेल्फ रेलिवेंट. तो पढ़ाई तो कांस्टेंट है. जब एक डॉक्टर भी पढ़ता है स्पेशलाइजेशन के लिए, तो चाहे एज अ सिंगर जब ये रियाज करते हैं न्यू फॉर्म्स में या ये वर्क्स विद न्यू डिज़ाइन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के हर क्राफ्ट में अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग ऑल्सो अध्ययन, प्रैक्टिस, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, कीपिंग अपडेटेड इज ऑफ फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस. जी अमित जी, OTT जब से आया है, क्या लगता है आपको कि अगर OTT नहीं होता तो जो सिनेमा का एक स्ट्रक्चर है ग्लोबली जी, उसमें क्या अभी भी कमी आती? वही हमें स्टीरियोटाइप देखने को मिलता, बहुत कम एक्टर्स को मौके मिलते.
एक तो क्या हुआ कि टेलीविज़न इतना डाइग्रेस हो चुका था वर्ल्ड ओवर, और ये OTT एक डिसरप्टर आया है, और हम इंडिया में इसको OTT कहते हैं, वर्ल्ड ओवर इट इज़ कॉल्ड SVOD प्लेटफॉर्म, वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स। ये डिसरप्टर आया है। इंडियन टैलेंट, वर्ल्ड टैलेंट हम देख रहे हैं। हम जब नार्कोस देखते हैं तो वो ब्राज़ीलियन या पोर्चुगीज या स्पेनिश में होता है, और हमारे देश का सिनेमा, रसूल वर्क्स इन एक्सटेंसिवली इन मलयालम सिनेमा, और मैं मलयालम सिनेमा का फैन, सबटाइटल इसकी वजह से आई सेड यू डू वर्क इन मलयालम, बड़ा यूरो मलयाली, 4 फिल्म किया मैं टोटल। मैं आई टेक माई वर्ड्स बैक, बट मतलब मुझे लगता है कि मैं मलयालम सिनेमा में देख पाया हूँ, वर्ल्ड सिनेमा देख पाया, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म मेरे आई बीन एबल टू सी। शंकर की इतनी बेहतरीन फिल्म कत्यार में नहीं देख पाता अगर OTT प्लेटफॉर्म नहीं होती, है ना। मैं अपना पुराना काम नहीं देख पाता। तो और द वर्ल्ड इज रिकग्नाइजिंग अस, फिल्म्स लाइक कोर्ट, सीरीज लाइक पाताल लोक, सीरीज लाइक मिर्जापुर, वी आर वॉचिंग नार्कोस, सो इट्स and television is getting threatened. So TV makers are getting to come out and create good content. People who are trained actors, trained technicians, who deserve to, who are maybe not getting their opportunity in cinema, but they deserve to be there, are getting that mid-way. This is the SVOD and the OTT platform. आप CEO हैं MESC के, और जैसा हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर दिन आ रहा है, AI इंट्रोड्यूस हो चुका है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे कोई भी और फील्ड हो। तो MESC क्या कर रहा है जिससे वो यूथ के लिए या बाकी लोगों के लिए रेलेवेंट हो और उस पर काम कर रहा है? देखिए, MESC का फॉर्मेशन जो हुआ है वो हुआ है स्किलिंग को आगे लेके जाने के लिए जी। और जब हम स्किल्स की बात करते हैं और खासकर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के सेक्टर में स्किल्स की बात करते हैं, तो यहाँ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन उसी के बराबर दूसरा कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं क्रिएटिविटी। और आज हम किसी चीज़ की भी बात कर लें, चाहे हम AI की भी बात कर लें, जो आर्टिफिशियल है, जो नेचुरल है, दैट इज़ द क्रिएटिव सेंस विच इज़ देयर इन अ ह्यूमन माइंड। आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फॉर दैट मैटर एनी न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इज़ फर्दर ग्रोइंग दिस सेक्टर। वो दिन था जब हमारे पास एक बड़ा सा TV होता था और बहुत कम होता था। आज हम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स और कंटेंट कंजम्पशन बहुत बढ़ गया। तो लोगों को कई जगहों पे जाके लगा कि टेक्नोलॉजी के आने से शायद मीडिया को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट हुआ है, बट पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। आज AI के आने के बाद एडवर्टाइजिंग में, डिजिटल में काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जॉब्स की जो संख्या है वो बहुत बढ़ गई है, और लोगों के लिए अपस्किलिंग करना एक, अब जो पहले तक लगता था कि नहीं मैंने एक चीज़ सीख लिया मुझे आगे नहीं बढ़ना, आई थिंक अपस्किलिंग करना एक उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरतमंद हो गया है। तो आई थिंक AI के आने से सर्टेनली सेक्टर को बेनिफिट हुआ है। और देखिए, अप्स एंड डाउन्स कुछ एक जॉब प्रोफाइल्स में तो होगा, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आएगी तो सर्टेनली अप्स एंड डाउन्स होंगे, नए बहुत क्रिएट होंगे। तो आई थिंक इसके कारण एक जो एडवांसमेंट्स आ रहे हैं उसके कारण ये इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूम मिल रहा है, और यही एक कारण है कि इंडिया आज अपने आप को ग्लोबल मैप के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लेके आ पाया है। जी शंकर सर, उससे पहले मेरा एक सवाल है जी मोहित जी से। जी हम अपने दर्शकों को, मेरे ख्याल से ये पहली बार देख रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में बताएंगे कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट काउंसिल है क्या? तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल इज अ सेक्टर स्किल काउंसिल which operates under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Our Honorable Minister Jayant Chaudhary ji is the force behind us, and our Honorable Secretary Ministry Skill Development and Entrepreneurship Atul Tiwari ji is the one who has been supporting us in taking this movement forward. So actually MESC is a platform. It's a bridge between industry and the academia, where we try to see that we are able to extensively work on the requirements from the industry, map it to those levels where those candidates can be absorbed. But employment is not the only area which we focus on. There has been tremendous opportunities in terms of gig economy in this sector. So I think freelancing, entrepreneurship is another big areas of focus. So while Sector Skill Council is an awarding body, we are an affiliating and an certifying body, we are also in the perspective of bringing industry closer to understand what academics want and tell academics that this is what industry wants. So I think a mutual relationship to be developed which can bring a lot of synergy is the core responsibility of a Sector Skill Council. So it's a bridge between Industry and academia. and the Okay. academy. अब क्लियर हो गया। अब शंकर सर, आप एक ऐसे म्यूजिशियन हैं जिनकी वजह से हम प्राउडली ये कहते हैं दैट वी बिलोंग फ्रॉम इंडिया एंड दिस इज आवर म्यूजिक। आपको ग्रैमी अवार्ड मिला, आपके बैंड को, शक्ति को,
इंटरनेशनल लेवल पर उस फ्यूजन की, उस क्लासिकल मिक्स की एक रिकॉग्निशन हो रही है, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो अभी भी यहाँ का यूथ जो है कोल्ड प्ले की तरफ या जो एक वेस्टर्न बैंड है उसकी तरफ दे आर गोइंग मैड एंड क्रेजी। नहीं अरिजीत सिंह के लिए भी जाते हैं हम लोग, पर कंपेरेटिवली वो फीवर कम दलजीत है। भी जाते हैं, दलजीत के लिए भी नहीं, अरिजीत के लिए भी जाते हैं दिलजीत सब, के लिए जाते दिलजीत हैं। कुछ है, दिलजीत, करण औजला, लेकिन तब भी उनका जो एक क्लासिकल म्यूजिक की तरफ एक जो रुझान है अगर मैं कहूँ वो कम है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेक्ट। जी to take what we have over the past maybe 1000 years और उसको हम लोग अपने आप, सबसे पहली बात तो हम लोग अपना ही जो कला है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी we should feel that our classical music, our classical dance, our art form that we have had for thousands of years, it's cool, you know। उसको हम कोई अलग नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप फ्रांस में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कल्चरल सेंटर्स हैं, इतने सारे क्लासिकल, उनके क्लासिकल म्यूजिक के प्रति उनको बहुत गर्व है, वो गर्व आना चाहिए, यू नो। सो दैट कैन बी वन ऑफ द मिशंस ऑफ yes. ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन को तक पहुंचा के, ना केवल पहुंचा के, उसको एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन कैसा बना सकते हैं, इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, और जो टैलेंटेड लोग हैं, स्किल्ड जो वर्कर्स हैं इन एवरी फील्ड, उसको लेके कैसे अब्जॉर्ब कर सकते हैं इंडस्ट्री में, ये देखना हमारा काम है। कि ग्रामी का जिक्र हुआ है, बैंड का जिक्र हुआ है, जाकिर हुसैन जी का जाना हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका उनके साथ ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको हमेशा याद वो है? तो मेरे मेंटोर थे, मेरे गुरु थे, मेरे गाइडिंग लाइट थे इन दिस इंडस्ट्री। मेरा एक इंटेंशन था उनसे सिर्फ मिलना, लेकिन आई एंडेड अप परफॉर्मिंग विद देम फॉर 25 इयर्स। तो मेरे लाइफ में इससे बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता। एंड तबला, अभी आप एक फुल स्टॉप डाल सकते हैं, क्योंकि उनके बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बजा रहा है या बजा पाएगा। बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर से एक जाकिर हुसैन जैसा कोई नहीं आ सकता। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। बस जाते जाते अगर 2 लाइन आप कुछ भी सुना दें उनके ट्रिब्यूट के लिए या ऐसे ही ऑडियंस को, सिर्फ 2 लाइन। हाँ, क्या ट्रिब्यूट किया। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। Made my day, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.